So very good evening, all the participants. Let us discuss some of the provisions regarding LLP today. Now in LLP, where LLP is defined actually. LLP is defined in section 2, subsection M of the LLP Act. So it defines the term foreign LLP as a limited liability partnership formed, incorporated or registered outside India, which establishes a place of business within India. ठीक है, तो foreign LLP कौन है? जो कि फॉर्म हुई, इनकॉर्पोरेट हुई या रजिस्टर्ड तो हुई आउटसाइड इंडिया, बट इट हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया. ठीक है. फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेन एलएलपी, सेक्शन 59 ऑफ द एलएलपी एक्ट gives powers to the central government to make rules for provision in relation to establishment of place of business by foreign LLPs within India and carrying on their business therein by applying or incorporating with such modifications as appear appropriate the provisions of the Companies Act or such regulatory mechanism with such composition as may be prescribed. Okay. So they prescribe the rules for establishment of business by foreign LLP, section 59 of the LLP Act. तो आपको पढ़ना क्या है? सेक्शन 2 सबसेक्शन M और सेक्शन 59 along with the rules. रूल 16.3 क्या बोलता है? रूल 16.3 बोलता है that a foreign LLP or a foreign company may on payment of rupees 200 apply in form 25 to the registrar for reserving its existing name by which it is registered in the country of its regulation. देखिए, उस कंपनी का नाम उसके पेरेंट कंट्री में है कुछ ना कुछ. ठीक है. अब वही नाम आपको यहां रखना है, तो उसके लिए आपके पास फॉर्म नंबर 25 है, उसमें आपको अप्लाई करना. Such reservation shall be valid for 3 years but may be renewed on a fresh application along with the payment of fees. ठीक है. तो पहली बात. Next, what are the documents you have to file? Chapter 11 of the LLP rules 2009 deals with foreign LLP. आपको chapter 11 पढ़ना है of the LLP rules. This deals with foreign LLP. देखो 5-10 मिनट लगाएंगे इस पे, लेकिन इस पे क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार वो, और अगर आपने कभी पढ़ा ही नहीं है तो मुश्किल हो जाती है. ए फॉरेन एलएलपी शैल विद, और कई बार पूछ चुका है इस पे, ए फॉरेन एलएलपी शैल विद इन 30 days of establishment of a place of business in India file with the registrar an application in form 27 along with the following document. तो इसने फॉर्म 25 पहले हमने पढ़ लिया. फॉर्म 25 तो आपको रिजर्वेशन ऑफ नेम के लिए हो गया. ठीक है. सबसे पहले फॉरेन एलएलपी कौन है, कहां डिफाइंड है? सेक्शन 2 सबसेक्शन M में. और फिर सेक्शन 59 बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है टू मेक रूल्स, और ये हमारे डिफरेंट रूल्स हैं. रूल 63 बोलता है कि यू कैन रिजर्व द नेम, और चैप्टर 11 जो है इट डील्स विद फॉरेन एलएलपी. सबसे ए फॉरेन एलएलपी शैल विद इन 30 days ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया फाइल विद द रजिस्ट्रार एंड एप्लीकेशन इन फॉर्म 27. तो आपको फॉर्म 27 फाइल करना अलॉन्ग विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स. क्या है? A copy of the certificate of incorporation or registration and other instruments constituting or defining the constitution of the LLP. ठीक है. जो भी आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है या सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है या कोई भी अदर इंस्ट्रूमेंट है आपके पास, वो आपको फाइल करना. देन फुल एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड और प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ द एलएलपी इन द कंट्री ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, कि जिस कंपनी में इनकॉर्पोरेट हुई वहां का रजिस्टर्ड और प्रिंसिपल ऑफिस. Full address of the office of the LLP in India, which is to be deemed as its principal place of business in India. Okay? And list of partners and designated partners, if any, and the names and addresses of 2 or more persons resident in India, authorized to accept on behalf of the LLP service of process and any notices or other documents required to be served on the LLP. ठीक है. तो जो भी उसके पार्टनर्स हैं या डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं, उनके लिस्ट, और फिर आपको 2 या 2 से ज्यादा नाम देने हैं जो रेजिडेंट इन इंडिया होंगे. ठीक है. जो कि ऑथराइज्ड होंगे टू एक्सेप्ट ऑन बिहाफ ऑफ द एलएलपी सर्विस ऑफ प्रोसेस एंड एनी नोटिसेस और अदर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी सर्व्ड ऑन द एलएलपी. ठीक है. अब ये जो फॉरेन एलएलपी है, फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन, इट इज डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज. पहला है एलएलपी इज इनकॉर्पोरेटेड इन एनी कंट्री. ठीक है. विच इज पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ. अब एलएलपी कौन से कंट्री में इनकॉर्पोरेट हुई उसके हिसाब से, अगर पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ है, या दैट फाइल्स आउटसाइड द कॉमनवेल्थ बट इज ए पार्टी टू द हेग अपोस्टाइल कन्वेंशन, या आउटसाइड द कॉमनवेल्थ एंड इज नॉट ए पार्टी टू द हेग कन्वेंशन. तो ये 3 तरह से डिवाइडेड है. 3 टाइप की कैटेगरीज है फॉरेन एलएलपी की.
पहला, if the LLP is incorporated in any country which is a part of the Commonwealth, the copies of the document discussed above shall be certified as true copies. तो इसका सर्टिफिकेशन कैसे होगा, उसका प्रोसेस है, ठीक है। कॉपीज आपको लगानी है, ये तो बता दिया। अब कॉपीज सर्टिफाई कौन करेगा, ये डिपेंड करेगा कि वो कैसे इनकॉर्पोरेटेड है। अगर जिस कंट्री में इनकॉर्पोरेटेड है वो पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ है, तो फिर इस तरह से होगा, ऑफिशियल ऑफ द गवर्नमेंट टू हुज कस्टडी द ओरिजिनल इज कमिटेड, और ए नोटरी इन दैट पार्ट ऑफ द कॉमनवेल्थ, और एन ऑफिसर ऑफ द एलएलपी ऑन ओथ बिफोर ए पर्सन हैविंग अथॉरिटी टू एडमिनिस्टर एन ओथ इन दैट पार्ट ऑफ द कॉमनवेल्थ। अच्छा, दूसरा, अगर ये जो एलएलपी है, इफ इट इज इनकॉर्पोरेटेड इन ए कंट्री दैट फॉल्स आउटसाइड द कॉमनवेल्थ बट इज ए पार्टी टू द हेग अपोस्टाइल कन्वेंशन, तो उस केस में क्या होगा, ये कॉपीज शैल बी certified by an official of the government to whose custody the original is committed and be duly apostolized in accordance with Hague Convention. A list of the partners and designated partners of the LLP, if any, the names and addresses of persons resident in India authorized to accept notice on behalf of the LLP shall be duly notarized and be apostolized in the country of their origin in accordance with Hague Convention. तीसरा, if the LLP is incorporated in a country outside the Commonwealth and is not a party to the Hague Convention, ये तीसरी सिचुएशन है, तो उस केस में कैसे होगा, ये कौन सर्टिफाई करेगा, एन ऑफिशियल ऑफ द गवर्नमेंट टू हुज कस्टडी द ओरिजिनल इज कमिटेड, ए नोटरी ऑफ सच कंट्री, एन ऑफिसर ऑफ द एलएल, ठीक है। रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन होगा फॉर्म 27 पे, रजिस्ट्रार शैल इशू ए सर्टिफिकेट फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया बाय द फॉरेन एलएलपी इन फॉर्म नंबर 30, ठीक है। ऑल्ट्रेशन अगर कोई कराना है डॉक्यूमेंट में, द इंस्ट्रूमेंट कॉन्स्टिट्यूटिंग और डिफाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, ठीक है। अब ये देखो कि ऑल्ट्रेशन कौन से डॉक्यूमेंट में कराना है, if any alteration is made or occurs in the instrument constituting or defining the constitution of a LLP incorporated or registered outside India, the registered or principal office of a LLP incorporated or registered, or the partner or the designated partner, if any of an LLP incorporated or registered outside India, the foreign LLP shall file in form 28 such alterations within 60 days of the close of the financial year, ठीक है। मतलब अगर फॉरेन कंट्री में जो उसका ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट था उसमें कोई ऑल्ट्रेशन है, या रजिस्टर्ड या प्रिंसिपल ऑफिस में कोई, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट भी यहां दे रखे हैं, अगर उनमें कोई ऑल्ट्रेशन है तो वो आपको लिए फॉर्म नंबर 28 भरना है विद इन 60 डेज ऑफ द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, इतना याद रख लीजिए कम से कम। चलिए, if any alteration is made or occurs in the certificate of incorporation or registration of LLP, name and addresses, principal, तो फॉर्म नंबर, अच्छा, the name and address of any of the persons authorized to accept service on behalf of a foreign LLP in India, उनमें कोई चेंज आया, या प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ फॉरेन एलएलपी इन इंडिया, फॉरेन एलएलपी, इसके लिए फॉर्म नंबर 29 फाइल करना है। बेसिकली क्या है, अगर बाहर वाले डॉक्यूमेंट्स में कोई चेंज है तो 28 है, और इंडिया वाले डॉक्यूमेंट है उनमें 29 है, ठीक है। और ये 30 डेज में फाइल करना है, जो बाहर वाले डॉक्यूमेंट है उसके लिए 60 डेज, इतना मोटा मोटा तो याद रख सकते हैं। Filing of accounts and solvency. Every foreign LLP shall file with the registrar the statement of accounts and solvency in form number 8 in accordance with the provisions of Rule 24, duly signed by the authorized representatives within a period of 30 days from the end of 6 months of the financial year. Okay. If any of such documents is not in English language, there shall be annexed to it certified translation thereof. If any translation is made outside India, it shall be authenticated by an advocate, chartered accountant, company secretary, or cost accountant, or an affidavit of a person who in the opinion of the registrar has adequate knowledge of the language of the original and of English. ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक अकाउंट्स और सॉल्वेंसी की स्टेटमेंट फाइल करना, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी, कौन से फॉर्म में, फॉर्म नंबर 8, कितने दिन के अंदर फाइल करनी है, विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ 6 मंथ्स, और अगर इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है तो ट्रांसलेशन। उसके बाद other matters, every foreign LLP shall cause the name of the foreign LLP and the country in which the LLP is incorporated to be stated in legible English characters in all invoices, official correspondence and publication of the LLP. ठीक है, तो जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस होंगे वहां पर आपको ये
क्या करना है, दोनों चीजें देनी है आपको। कंट्री जहां पर वो एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुआ, नेम ऑफ द फॉरेन एलएलपी एंड द कंट्री इन विच इट इज इनकॉर्पोरेट. Where any such LLP makes default in delivering to the registrar the names and addresses of persons resident in India who are authorized to accept on behalf of the LLP service of process notice, or if at any time all the persons whose names and addresses have been so delivered are dead or ceased to reside or refuse to accept service on behalf of the LLP, or for any reason cannot be served, a document may be served on the LLP by leaving it or sending it by post to any place of business established by LLP in India. अच्छा, मान लीजिए फॉरेन एलएलपी ने अपना बिजनेस बंद कर दिया, तो क्या होगा, तो रजिस्ट्रार को नोटिस देना फॉर्म नंबर 29 में, विद इन 30 days ऑफ इट्स इंटेंशन टू क्लोज द प्लेस ऑफ बिजनेस. ठीक है, तो फॉर्म नंबर 29 पहले भी आया था. ठीक है, पहले फॉर्म नंबर 29 क्या आया था, अगर कोई ऑल्ट्रेशन होता है, ऑल्ट्रेशन के लिए भी फॉर्म नंबर 29 है. और अगर इफ इट सीजेस टू हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, तो भी फॉर्म नंबर 29 में नोटिस देना है, विद इन 30 days ऑफ इट्स इंटेंशन टू क्लोज द प्लेस ऑफ बिजनेस, and as from the date on which the notice is so given, the obligation of the LLP to file and document to the registrar shall cease, provided it has no other place of business in India and it has filed all the documents due for filing as on the date of the notice. Every document which is required to be filed by any foreign LLP shall be filed in the electronic form to the registrar having jurisdiction over New Delhi. ये भी पूछ लेता है कई बार कि कहां पर फाइल कर रहा है, ये रजिस्ट्रार में फाइल कर, रजिस्ट्रार के पास फाइल करना जिसके पास जुरिस्डिक्शन है ओवर न्यू दिल्ली, थ्रू द पोर्टल मेंटेन्ड बाय द एमसीए. ठीक है, तो इतना सही है, कम से कम इतना तो जरूर आप याद कर लीजिएगा फॉरेन एलएलपी के बारे में. उसमें उसके बाद एलएलपी के बारे में क्या पूछता है, एलएलपी के बारे में भी देख लेते हैं. एक क्वेश्चन पूछता है मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन एलएलपी. हाँ हाँ, वो तो मिनिमम 2 है, मैक्सिमम नो लिमिट. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है. अब एक बार ये करते हैं कि एलएलपी एक्ट पर चलते हैं. ठीक है, मैं अपनी साइट खोल लेता हूँ, साइट से एलएलपी पर एक्ट पर जाकर के 5 मिनट में देख लेते हैं उसको. ये मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपसे अपनी, ये मेरी स्क्रीन है. ठीक है जी, स्क्रीन में आप नॉलेज बैंक में जाएंगे, नॉलेज बैंक में जाके एक्ट्स में चले जाइएगा, एक्ट्स में आप कॉर्पोरेट लॉज में चले जाइएगा. तो कॉर्पोरेट लॉज में, एक मिनट, इसको, ये एलएलपी एक्ट, ये पार्टनर्स एंड देयर रिलेशंस. इसमें तो कुछ है नहीं. डेफिनेशंस में देख लेते हैं, कुछ है क्या. हम्म, पहले तो ये बताइए, इसे छोड़िए, क्या एक कंपनी एलएलपी में पार्टनर बन सकती है, कंपनी एलएलपी में पार्टनर बन सकती है क्या. यस. बिल्कुल सही. ठीक है, और पार्टनरशिप फर्म, आई है, पार्टनरशिप थिंक फर्म जो है एलएलपी में पार्टनर बन सकती है. आई थिंक दे कैन. Incorporation document for a limited liability partnership, two or more persons associated
फॉर कैरिंग ऑन ए लॉफुल, देखो पर्सन के डेफिनेशन में आना चाहिए। तो अगर पर्सन के डेफिनेशन में आएगा तो बन सकते हैं। एक मिनट, ये मैं इसको बंद कर देता हूँ। कोई भी बंद करिए, ये बंद करते हैं, ये। सर सर हाँ अगर अगर कोई भी एंटिटी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है तो वो एलएलपी का पार्ट बन सकती है, ऐसा एक जगह लिखा है। तो नहीं इसका मतलब पार्टनरशिप फर्म भी पार्टनर बन सकती है एलएलपी में, क्योंकि एनी एंटिटी लिखा है। मैं बताऊं किधर लिखा है, एक जगह मैंने पढ़ा है। हम्म। नहीं, वही कहता है, पार्टनरशिप फर्म कैन बिकम ए पार्टनर इन एन एलएलपी इन इंडिया, द फर्म मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर द पार्टनरशिप एक्ट एंड ऑल द पार्टनर्स मस्ट कंसेंट टू द कन्वर्जन। The LLP must then have all the same partners as the partnership firm. मतलब बन सकती है ना। हाँ बन सकता, और कन्वर्ट भी कर सकते हैं उसको एलएलपी पे। हाँ, कन्वर्ट तो But हमारी फर्म but को भी किया minor है cannot इसलिए। be the partner of LLP. एंड सर LLP. हाँ वो तो वन, है। हम्म। और सर वन एलएलपी कैन बी अ पार्टनर इन अनदर एलएलपी, हाँ क्यों नहीं। बिकॉज अ पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट बी अ पार्टनर इन अनदर पार्टनरशिप फर्म, ये तो है। भाई ये देखो ना कि ये जो एलएलपी एक्ट में इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं और बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकते हैं पार्टनर, हम्म है ना। हम्म नहीं, पार्टनरशिप फर्म किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकती, ना बिल्कुल ठीक है। है ना। तो हम्म। लेकिन एलएल पार्टनरशिप फर्म किसी एलएलपी में पार्टनर बन सकती पार्टनर है। बन सकती है बिल्कुल, एक कंपनी ओके, भी एलएलपी में पार्टनर बन सकती हाँ हाँ, कंपनी का तो लिखा है बॉडी है। हाँ कॉर्पोरेट। ओके, हम्म। एंड मतलब पार्टनरशिप फर्म में तो सिर्फ, मतलब ये उससे रिलेटेड नहीं है, बट पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनरशिप फर्म में सिर्फ इंडिविजुअल्स ही पार्टनर बन सकते हैं ना। एचयूएफ हम्म। पार्टनर बन सकता है? नहीं, नहीं बन सकता ना, ठीक है। एक सवाल था आपका, कहने पार्टनरशिप फर्म बिकम ए पार्टनर, नहीं, एक पार्टनरशिप फर्म जो है दूसरी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकता। अच्छा ये बताइए, एक फॉरेन एलएलपी है और एक इंडियन कंपनी है, क्या मर्जर हो सकता है? ये फॉरेन सवाल कई बार वो एलएलपी, पूछता है, ये अच्छा। सवाल वो कई बार पूछता है। मेरा सवाल समझ में आ गया ना। मतलब फॉरेन एलएलपी इंडियन एलएलपी के साथ मर्ज करना है कि पार्टनरशिप हाँ करनी है? हाँ 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 हाँ, मर्ज करना है। तो इस सर कंपनीज एक्ट तो अलाउ करती है मर्जर एंड हाँ अमलगमेशन कंपनीज बिटवीन। एक्ट अलाउ करती है, बिल्कुल ठीक। हाँ, हम्म। बताइए सर, आप ही बताइए। हाँ अब ये देखिए, इसमें ना थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है? हाँ एक तो है हाँ इंडियन एलएलपी। अगर हम्म इंडियन एलएलपी को इंडियन कंपनी के साथ में कन्वर्ट करना है, हम्म तो क्या है कि एलएलपी को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा कंपनी में। ओके। लेकिन अगर फॉरेन एलएलपी को मर्ज करना है इंडियन कंपनी में, तो फिर कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, वो सीधी ही फॉरेन एलएलपी जो है इंडियन कंपनी में मर्ज हो सकती है। क्वेश्चन ये लेकिन एलएलपी है तो। है, एलएलपी मर्ज हो जाएगी ना, फॉरेन एलएलपी इज अलाउड टू बी मर्ज। इंडियन एलएलपी को नहीं मर्ज कर सकते इंडियन कंपनी के साथ, इंडियन एलएलपी को पहले कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा फिर मर्ज। ओके, ठीक है। ये है, ठीक है।
So if an Indian LLP is proposed to be merged into an Indian company, then firstly the LLP has to apply for registration under section 366 of the Companies Act. ठीक है, तो ये केस लॉ भी है इस पे। केस लॉ में क्या कहता है, एक मिनट, लो बेटा खाना ले जाओ। Bhuvi, take your plate from here. I'm not going to come. इसका 17 से ये भी कर सकते हैं। एक Kavya, Mama is having a class, no? Can you come in the kitchen and take the plate? गरम करने तो कर दो। Preeti madam, turn to mute your mic. Oh, sorry, sorry. सर रेरा में हमको मेजरली पूरा रेरा पढ़ना है या उसका भी कुछ शॉर्ट नोट या चीट शीट बना के पढ़े? एक मिनट, रेरा से पहले एक बार इसका सेक्शन 234 देखते हैं, कंपनीज एक्ट का। सेक्शन 234 आप जरूर पढ़ लीजिएगा कंपनीज एक्ट का। मैं अभी शेयर करता हूँ आपसे, ये जो फॉरेन कंपनी, फॉरेन एलएलपी वगैरह वाला पॉइंट है। वही पढ़ रही थी सर मैं, उसी में ये था कि फॉरेन कंपनी, फॉरेन एलएलपी इंडियन बॉडी कॉर्पोरेट में तो मर्ज हो सकती है, इट कैन बी एमलगमेटेड। हम्म एक एक मेरे पास एक आर्टिकल है, मैं शेयर करती हूँ ग्रुप में। हम्म ये चैप्टर 15 में आ रहा है। कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट्स वाले में। सर ये बहुत अच्छा इजी वे में टैक्स गुरु में आया है, मैंने ये पढ़ा, मुझे अच्छा लगा, ये हम्म शेयर किया ग्रुप में। यहीं पर शेयर कर दो। ग्रुप में कर दिया सर, अपने व्हाट्सएप पे। ठीक है, मैं यहाँ आपको एडमिन बनाता हूँ, यहीं शेयर कर दो। अच्छा। एक मिनट लगेगा। अभी पढ़ ही लेंगे ना हाथ के हाथ। हाँ जी, करिए मैडम शेयर। एक सेक्शन 234 क्या बोलता है, मर्जर और अमेलगमेशन ऑफ कंपनी विद फॉरेन कंपनी। लेकिन उसमें ये बात, बेसिकली आरबीआई का अप्रूवल तो चाहिए होता है। हाँ
ठीक है ना? वो तो मतलब आरबीआई का अप्रूवल तो कैसे, हम कुछ भी फॉरेन कहीं हाँ भी नाम हाँ आ गया तो बिल्कुल। आरबीआई का तो है ही। हाँ और एक सर, एक कंफ्यूजन आज मेरे ऑफिस में हुआ, ये सर मतलब मेरा आर्टिकल मुझे बोला कि मैडम सरफेसी तो अभी अबॉलिश हो गया, सरफेसी अभी नहीं है क्या एग्जिस्टेंस में? नहीं नहीं, कहाँ बोलिस कहाँ से हो गया? तो फिर वो बोलते हैं कि मैंने कहा हमारे तो कोर्स में है, तो बोलते हैं नहीं मैडम सरफेसी नहीं तो नहीं 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 है। नहीं, सरफेस देखिए ऐसा नहीं है, सरफेस से थोड़ी सा पॉलिश हो गया। सरफेस एक हाँ। डिफरेंट चीज है भाई। ओके। आप देखो हाँ। ना, सेक्शन 52 हम पढ़ते ही नहीं है, सेक्शन 52 कहता है हम्म। सरफेसिंग एक्शन, नहीं वो गलत बोल रहा है। और उस अभी है ना, एक क्वेश्चन भी था शायद आपके ही टेस्ट सीरीज में था कि वो प्रेसिडेंसी टाउनशिप और वो वाले एक्ट खत्म हुए हैं, उसमें चार हाँ ऑप्शन थे। चार हाँ। ऑप्शन थे उसमें सरफेसी भी था। तो नहीं नहीं, सरफेस, वो सरफेसिंग बच्चे नहीं। लोग वो बच्चे लोग मेरा टेस्ट ले रहे थे, मैडम आपकी कितनी पढ़ाई हुई, चलो हम आपका टेस्ट लेते हैं। तो बोलते मैडम आपका आंसर गलत है, मैंने कहा नहीं हमारे आंसर सही है। नहीं नहीं नहीं। ठीक है। ये वाला है सर, मैंने शेयर किया है ना, ये वाला है। हाँ तो इसको तो, मेन मेन पढ़ लेते हैं ना, है क्या ये, क्या कहता है ये? हाँ। देखो चलो बेसिक बात इसमें यही है हम्म। कि अगर फॉरेन एलएलपी है वो डायरेक्टली मर्ज हो जाएगी इंडियन कंपनी के अंदर। हम्म। लेकिन अगर इंडियन एलएलपी है तो वो डायरेक्टली मर्ज नहीं होगी, इतना ही सवाल वो पूछता है। हम्म। अगर इंडियन एलएलपी है तो पहले उसको इंडियन कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा एलएलपी को, और कंपनी में कन्वर्ट होने के बाद में वो मर्ज हो, इतनी सी बात है। ठीक है, वही इसमें भी वही लिखा है। हाँ, उतना हमें याद रहना चाहिए। अब आप पूछिए, क्या कुछ और पूछ रहे थे आप? ये तो हो गया मेरा, तो स्टॉप करती हूँ। हाँ, अब क्या कह रहे थे आप? मैं, एक मिनट, मेरा खाना भी बन रहा है साथ में। क्या? हाँ, रेरा का पूछ रही थी सर, रेरा में भी क्या पूरा हाँ बहुत पूरा पढ़ना है कि उसका भी कुछ भाई चीट देखो, शीट ऐसा होती है, है? रेरा में दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? हम्म। सबसे पहले तो रेरा में एक तो गैरेज की डेफिनेशन पूछता है वो। अच्छा। ओके। रेरा में वो पूछेगा गैरेज की डेफिनेशन, हम्म। ये गैरेज क्या है। ओके। दूसरा, वो पूछेगा कि भाई रेरा का आपके पास ऑर्डर आ गया, तो अब आपको अपील करनी है, अपील कितने दिन में करनी है? अपील अगेंस्ट रेरा ऑर्डर। लिख लेती हूँ सर, एक मिनट। 60 डेज सर, हाई कोर्ट में अपील 60 करना days. पड़ेगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। नहीं, पहले अपीलेट ट्रिब्यूनल में करनी पड़ेगी आप। ना ना, रेरा अथॉरिटी है, एपीलेट अथॉरिटी, रेरा हाँ, एपीलेट रेरा की अपीलेट अथॉरिटी है। देखिए, जैसे सबसे पहले तो रेरा एक अथॉरिटी है, रेरा की फिर अपीलेट अथॉरिटी है। तो अपीलेट अथॉरिटी में आपको अपील करनी है विद इन 60 डेज, जब आपको ये रेरा का ऑर्डर आ जाए। ठीक है, और 60 डेज के बाद में भी कंडोनेशन ऑफ डिले के साथ भी बाद में भी अप्लाई आप कर सकते। ठीक है, तो रेरा का अपीलेट ट्रिब्यूनल है, और ये कहां लिखा हुआ है? सेक्शन 43 सबसेक्शन 5 ऑफ रेरा एक्ट। ठीक है, गैरेज क्या होता है, डेफिनेशन? अब गैरेज का डेफिनेशन ये है कि भाई वो तीन साइड से जो है ना वो कवर्ड है, एक साइड खुला रहेगा, भाई गाड़ी जाने जाने की जगह तो चाहिए ना। यहाँ देख लेते हैं एक बारी, यहीं पर निकाल देता हूँ मैं, वैसे मैंने वो शेयर किया हुआ है आपको, पीपीटी, उसमें है। ओके, ठीक है सर, सर मैं एक देख लेता सर एक लास्ट मंडे को और ले लीजिएगा, मैं तब लिख के हाँ रखूंगी सारे पॉइंट। देखो ये है, एक मिनट एक मिनट, मैडम आपका ये गैरेज। रीजन। तो गैरेज क्या कहता है? गैरेज इज डिफाइंड एज एन एनक्लोज्ड स्पेस विद इन ए प्रोजेक्ट, टिपिकली विद ए रूफ एंड 3 वॉल्स। ऊपर छत रहेगा, तीन तरफ दीवार रहेगा, डिजाइन्ड फॉर पार्किंग, मतलब ओपन जो पार्किंग स्पेस है ना, वो गैरेज नहीं है, सीधी बात है। दिस डेफिनेशन एक्सक्लूड्स ओपन और अनकवर्ड पार्किंग स्पेसेस लाइक दोज फाउंड इन ओपन कार पार्क्स। गैरेजेस आर ऑफन एसोसिएटेड विद इंडिपेंडेंट हाउसेस और
villas and can be sold separately from the apartment according to section 2Y of RERA. ठीक है. It also defines a garage to means a place within a project having a roof and wall on 3 sides for parking any vehicle. सर कोई कोई प्रमोटर ओपन स्पेस पार्किंग के लिए देता है, वो तो गैरेज वो गैरेज नहीं है. हाँ, सेक्शन 2 सबसेक्शन Y ऑफ रेरा. लेकिन वो लोग पैसा देता है गैरेज के लिए वो ठीक है. और ओपन स्पेस दे देता ये है. देखिए आपको जो डेफिनेशन मिलेगा ना सेक्शन 2 सबसेक्शन Y में मिलेगा. ये नजर आ रहा होगा आपको स्क्रीन पे. तो सेक्शन 2Y of the RERA Act defines a garage as a space within a real estate project that has a roof and walls on 3 sides intended for parking a vehicle. It explicitly excludes unenclosed or uncovered parking areas like open parking spaces. चलिए और पूछिए, कुछ आपने पूछना हो तो. नहीं तो एक आध टेस्ट कर ले कोई. टेस्ट बहुत सारे हैं, देख लेते हैं जरा, कुछ मिल जाए तो. सर कर सकते हैं टेस्ट. आरडीबी में मिनिमम अमाउंट है 20 लाख ना. 10 लाख था, अभी 20 लाख हो गया. किसमें? क्या? आरडीबी. यस, हाँ 20 लाख है किसमें? आरडीबी में. आरडीबी और सरफेसी में कोई लिमिट नहीं है. सरफेसी में ओनली सिक्योर्ड क्रेडिटर है. हाँ, पर 1 लाख से कम हो तो नहीं ले आप कर सर, एक्शन ले नहीं सकते किसी में. राइट या फिर अगर 20% से कम आउटस्टैंडिंग हो तो भी एक्शन नहीं ले सकते. राइट. वो लिमिट तो है ही. कुछ करना है क्या या छोड़ देते हैं हम? ठीक है. सर टेस्ट शेयर कर दीजिए ना, ग्रुप में कर लेंगे. टेस्ट तो दे रखे मैंने, ये जनरल लॉस टॉपिक्स एंड लिंक्स. हाँ वो तो पूरा शीट. सर इकोनॉमिक्स में कुछ क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक्स में. हाँ, वो कार्ड का शेप क्या होगा, कॉस्ट कार्ड का, ऐसे मार्केट मॉर्फोलॉजी का ऊपर, ऑलिगोपोली, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक. आपका पास कोई नोट है तो शेयर कर दीजिए, पढ़ लेगा हम लोग. सर मेरे को 1-2 मार्क्स से आता है. कॉन्स्टिट्यूशन पे शेयर करिएगा. कॉन्स्टिट्यूशन पे कॉन्स्टिट्यूशन हो 1-2 मार्क्स से आता है. इकोनॉमी वो आता है. ऑलरेडी भी शेयर किया हुआ है. नहीं सर, कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ किया आपने शेयर? एक मिनट देखो, मैं और अभी एक सर मेरे को कोड ऑफ वो कंडक्ट तो नहीं समझ में आ रहा. वो केस स्टडीज तो बहुत टफ है. आपने जो शेयर करी थी कोड ऑफ कंडक्ट वाली, हाँ हाँ, वो तो बहुत मतलब ऐसा लगता है कि बहुत टफ है वो. और टफ क्या है उसमें? सर वही ना, मेरे को नहीं समझ में आ रहा. आप या तो मेरे को बहुत अभी स्ट्रेस आ गया है एग्जाम का, तो आप कोई नोट्स हो तो नोट शेयर कर दो ना. मैं तो नोट्स पढ़ के चली जाऊंगी, वहां पे आएगा तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे. मैडम आपका डेट कब है? अरे सर आ अब ये गया. देखो, अब ये देखो जनरल हाँ, अवेयरनेस. ये जनरल अवेयरनेस वाला, एक मिनट में दिखाता हूँ. ये 25th आपका डेट. 23rd है सर, 23rd. आपका कब है सर? अरे इनका तो होता रहता 30th. 38? है. 30th. ये कौन सा date है? ये वाला पीपीटी मैंने शेयर किया हुआ है मैडम ऑलरेडी. अच्छा ओके. नहीं मेरे पास नहीं है, मैंने सेव नहीं किया या तो. अब भाई ओके सेव ना, मैं तो ग्रुप वाले ही को दोबारा डाल दीजिएगा. सुदर्शन जी सर. आप ग्रुप में दोबारा डाल दीजिएगा. सर 203 स्लाइड्स हैं सर, 203. हाँ तो 203 स्लाइड में सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है. आप देखो अच्छा. ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन इसमें आ गया. हम्म. कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में इसमें कुछ और होगा. 203 इसकी थोड़ी हो जाएंगी. ठीक है सर.
ये राइट्स ऑफ वर्कमैन आ गया, है ना। ठीक है, ओके, कर लूंगी आज, आज कंप्लीट करके ये ही इकोनॉमी के ऊपर आ गया कुछ। ओके ओके, ठीक है सर। ये फॉरेंसिक ऑडिट, ये ठीक है छोटे सर, छोटे टॉपिक है ना। सर बहुत अच्छा है सर, थैंक यू सो मच। ये तो आप प्लीज शेयर कर दीजिए ना ग्रुप में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये कौन से थैंक ग्रुप यू। में शेयर करूं बताओ। एक मिनट मैं थैंक देखती यू हूँ ना, सर। मेरे पास है तो नहीं कहीं। सर 20 मार्च, 20 हैं? मार्च कर दो, 20 मार्च। अभी कर, हाँ सर, ये नहीं है मेरे पास। मैं अभी शेयर, सर जनवरी वाले ग्रुप में। अभी कर देता हूं। शेयर जरूर किया होगा, दोबारा शेयर कर। 20 जनवरी सर। हाँ एक, सर, आपका डेट तो बता दो कब है, मैं तो सर, मैं तो सर आपका एग्जाम डेट तो बता दो मुझे। 30 अप्रैल, 30 ओके, अप्रैल। 30/30, ओके। मेरा 23rd वेनेसडे, है। वेनेसडे, वेनेसडे। मेरा भी वेडनेसडे ही है। एक देखो ये जनवरी वाला आपका ग्रुप है, Tuesday। ये जनवरी वाले ग्रुप में शेयर करता हूँ, ठीक है फिर सर। मार्च वाले में कर दूंगा। ये कर दिया, दोनों ग्रुप में आ गया। ठीक है सर। मिल गया सर, मिल गया। आ गया जी। यस सर। और बताइए, कुछ और मटेरियल चाहिए तो, या कोई और टॉपिक जो समझ में नहीं आ रहा पूछ लो, बता दूंगा मैं तो। सर बस एक एक अभी सर, ये पढ़ लेते हैं, फिर मंडे को एक मेरे लिए और एक डाउट सेशन रख लीजिएगा बस। कर लेंगे, क्या दिक्कत। आप वैसे फोन कर लिया करो, कभी फोन पे भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कल मेरी मिसेस का बर्थडे है, कल शायद मैं बिजी रहूंगा। ठीक है, मैडम को हैप्पी बर्थडे हम हाँ। विश कर देंगे। आपका एड्रेस भिजवा दीजिए तो हम केक भी भेज देंगे मैडम के लिए। सर आप लंदन नहीं गए? अरे कहाँ गए, वो बात हो रही थी मेरी, फिर वो बोला ऐसा है अभी ना, इसको बाद में करते हैं, मई जून के अंदर, जब थोड़ा सा फ्री होंगे, मौसम भी बढ़िया होगा, तो देखते हैं, कुछ ना कुछ बातचीत चल रही है, करते हैं। ठीक है सर, जब तक आपके सब स्टूडेंट्स पास हो जाएंगे आप अच्छे अच्छे मूड में जाइएगा, आपको हम हाँ ये तो है, परेशान नहीं करेंगे। ठीक बात है, सही बात। ठीक है सर, हो गया, अभी हम कर लेते हैं, ये तो मैं अभी कर लेती हूँ जनरल अवेयरनेस, हाँ और फिर कुछ प्रॉब्लम सुदर्शन होगी जी, तो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन, एनी पर्टिकुलर मटेरियल यू रिक्वायर। सर उन्होंने मई में तो तो फिर बैच मैं शेड्यूल नहीं व्हाट्सएप किया है। करता हूँ ना आपको। हाँ जी, यस सुदर्शन जी। कुछ होगा तो मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ ना फिर आपको। ओके ओके ओके। मोस्ट- क्या ऋतु जी कुछ कह रहे थे आप। नहीं तो हाँ मैं सर, बोल मई सकता हूँ। मई में उन्होंने शेड्यूल नहीं किया एक भी बैच, मतलब एक भी एग्जाम डेट। वो अभी नहीं करेंगे ना, पहले ये वाला तो क्लियर हो, वो हाँ, अप्रैल के एंड में करेंगे। क्या ओके। मोस्टली 28 या 29 डेट में देख लीजिए, मैं वो समय में नहीं नहीं होता है, मतलब नहीं सर, मेरे को नहीं 2 डेज देखना, मेरे खत्म को होने के नहीं बाद। देखना, मेरे को 23rd में पटा के पूरा करना है। मैं 24th को बाहर जा रही हूँ, अभी बस बहुत हुआ। हम्म। 23rd पटा के 24th को जाना है। हाँ, तो आपका किधर एग्जाम कब है। जाएंगे मैडम, किधर, 23rd। यूरोप? नहीं किधर सर, जाएंगे, अभी यूरोप? अभी तो घूम के आए हैं, अभी बाहर नहीं जाना, मेरे को मम्मी के घर जाना है, 3 साल हो गए नहीं गई हूँ। अच्छा अच्छा। अभी तो मैं घूम के आ गई सर, 15 दिन तो गई थी सिंगापुर और क्रूज और मलेशिया, अभी हाँ, बस अभी। हाँ, ओके राइट ओके, मेरी राइट डॉटर तो राइट। मलेशिया में है, वो कई बार बोलती रहती है पापा आप आ जाओ। मैं कहा बेटा पहले ये क्लासेस वगैरह से फ्री हो ले। वो तो वही रह रही है ना। ओके, हम्म। अच्छा है सर। वो तो ईवाई में है ना, मेरी बेटी है ईवाई में, ईवाई ग्लोबल में।
वाह, अच्छा। गुड। तो वो मलेशिया में ही रहती है। अच्छा, मैं दुबई में मेरा ऑफिस है, मैं अभी दुबई जाऊंगी जून में। और हाँ, अभी अभी मई में मैं मम्मी के घर जाऊंगी, मेरे स्कूल की 25th रीयूनियन है। ओके। तो उधर जाएंगे और मम्मी के घर जाएंगे, पुष्कर में है रीयूनियन। अच्छा अच्छा अच्छा। वेरी। हम्म। और फिर जून में दुबई जाना है। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ। फिर इस बार केदारनाथ भी जाना है, सब पार्टनर्स, केदारनाथ का हमारा बुकिंग हो गया सितंबर में। ऑडिट सीजन में हम लोग केदारनाथ जाने वाले हैं। ओके, ठीक है जी, ओके, गुड नाइट। ओके सर, थैंक यू, ओके, गुड गुड नाइट। नाइट।